Good morning, students. It is your civics period, chapter 3, electoral politics. The topic will be counting of votes. The counting of votes. You have know about the polling. After then, we shall study the counting of votes. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. पोलिंग समाप्त होने के बाद सभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम्स हैं, उनको एक फिक्स प्लेस पर जहां पर कंप्लीट सिक्योरिटी होती है उसको रख दिया जाता है. A few days later, on a fixed date and time, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. After few days, on a fixed date and time, all the EVMs from all constituencies opened of that secure place and votes secured by each candidate are counted. The agent of each candidate are present there to ensure that the counting is done properly or not. सभी पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके एजेंट जो होते हैं वह काउंटिंग प्लेस पर मौजूद रहते हैं यह देखने के लिए कि क्या काउंटिंग ठीक से हो रही है, कोई उसमें हेराफेरी तो नहीं हो रही है. इस सब को देखने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट के अपने अपने एजेंट होते हैं. द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम a constituency according the simple majority system is declared elected. Simple majority system. According the simple majority system, candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के आधार पर जिस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसकी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस कैंडिडेट को अधिकतम वोट मिलते हैं यानी सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही कैंडिडेट विजयी होता है और उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्क्रूटनिंग ऑफिसर के द्वारा. इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम डेट एंड टाइम. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies
takes place at the same time. जनरल इलेक्शन के समय वोट्स की जो काउंटिंग होती है तो उसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वोट होते हैं उनको सेम डेट और सेम टाइम पर गिना जाता है। ऑन द सेम डे टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। जो चुनाव की काउंटिंग होती है उसकी पल पल की खबर टेलीविजन चैनल्स और रेडियो के द्वारा प्रसारित होता रहता है। न्यूज़पेपर भी रिपोर्ट देते हैं इन सब घटनाओं की। विदिन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, क्योंकि अब बैलेट पेपर नहीं होता, ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग होती है, इसलिए इसकी काउंटिंग बहुत आसान हो जाती है और काउंटिंग स्टार्टिंग के कुछ घंटों के बाद ही सभी रिजल्ट डिक्लेयर होने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात यह क्लियर हो जाता है कि किस पार्टी यानी अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी। यह सब काउंटिंग के बाद मालूम हो जाता है कुछ ही घंटों में। Students, you know that according to simple majority system, the highest candidate who secures votes of the constituency declared as a winning candidate by the scrutiny officer of the district. Now we try to understand about simple majority system. Already you know about the majority system. In majority system, candidate or party which secures more 50% or more than 50% is known as majority party. But at the time of counting of votes of candidates is not followed, but only the simple majority system follows. What is simple majority system? The system that we follow at the time of counting of votes is the system that we follow at the time of counting of votes is known as simple majority system. The system is criticized as being undemocratic. The person elected may not present the majority of votes in the constituency. जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम होता है इसके तहत मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या होता है, द कैंडिडेट व्हिच सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क he or she may be in majority or not, but if he or she
obtained highest मतलब secures highest votes in the constituency, then he or she declare as winner. Majority सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के तहत किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है, जबकि मेजॉरिटी सिस्टम में 51% और मोर देन 51% वोट होना चाहिए। लेकिन हमारे लॉ में हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वोटिंग के, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट वोट सिक्योर करते हैं कैंडिडेट, उन्हीं को डिक्लेयर किया जाता है। इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि यह मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो। सपोजिंग ए, बी एंड सी contesting elections. Suppose that total polled votes 100, A obtains 40 votes, B obtains 25 votes, C obtains 35. 100 वोट में मेजॉरिटी वोट तो 51 होगा या 51 से अधिक होगा, बट इसमें ए को सबसे ज्यादा वोट मिला है, जबकि वह मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ए को विनर डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि ए का वोट सबसे ज्यादा है। A is the elected candidate. A is the elected candidate, but he has not obtained majority of votes of the constituency, that is 51% or more than 51%. A को विनर डिक्लेयर किया जा रहा है। किस बेस पर? सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको विनर डिक्लेयर किया जा रहा है क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम यह बताता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिला है वही विजयी डिक्लेयर होगा। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको मेजॉरिटी वोट मिला है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, सबसे अधिक वोट उसका है इसलिए उसको विनर घोषित किया जाएगा। यही सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम होता है। जबकि मेजॉरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको 51% या इससे ऊपर या इससे अधिक वोट की जरूरत होती है। In this way we have studied about the counting of votes. Your class is over. Okay, thank you.